आज अपन डिस्कस फिटस सर्कुलेशन होता क्या है ना। जो फिटस सर्कुलेशन होता है वो जो अडल्ट सर्कुलेशन होता है उससे बिल्कुल डिफरेंट होता है, ठीक है। क्योंकि जो फिटल होता है उसके जो लंग्स होते हैं वो इतने मैच्योर नहीं हो पाते हैं, क्या करें मतलब ब्लड को प्यूरिफिकेशन कर सके अच्छे तरीके से। इसलिए जो फिटल का जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो अडल्ट के ब्लड सर्कुलेशन से डिफरेंट होता है। कैसा होता है? बिल्कुल ही डिफरेंट होता है। तो आज अपन पढ़ेंगे कि फिटल सर्कुलेशन होता क्या है। चलो देखते हैं फिटल सर्कुलेशन क्या होता है। सबसे पहले there are the three periods are distinguished in the perinatal development of the fetus: ovular period, gramenal period, embryonic period और fetal period. Ovular period which last for first 2 weeks 14 days तक का उसको अपन ovulation period बोलते हैं, and it is spite of the fact that the ovum is fertilized. Embryonic period begins at third week of following ovulation and extend up to 10 week of gestational, that called embryonic period. Fetal period begins after 8th week following conception and in delivery. The chronology in the fetal period is henceforth expressed in terms of menstrual age and not in embryonic age. Length of the fetus: to determine the length of the fetus, the measurement is commonly taken from the vertex to the coccyx in the earlier weeks, while from the end of 20th week onwards, the measurement is taken from the vertex to the heel. Growth of fetus: normal fetal growth is characterized by cellular hyperplasia followed by the hyperplasia and hypertrophy, and lastly by the hypertrophy alone at term. The average fetal weight in India is 2.5 to 3.5 kg normal होता है. Fetal blood: the total fetoplacental blood volume at term is 125 ml per kg body weight of the fetus. The lifespan of the fetal RBC is about 2/3 of the adult RBC. Maternal immunoglobulin cross the placenta from the 12th week of the onwards to the give the fetus passive immunity. के बाद में आएगा urinary system. Never term the urine production rise 650 ml per day. Skin 16th week per laningo appears, but near term the almost completely disappear, and 20 week per and sweet glands are somewhat later. Wernicke says the secretion of the subcutaneous gland is abdominally present, simmering of the skin. Gestational tract: as early as 10 to 12 weeks, the fetus swallows amniotic fluid. The meconium appears from the 20th week. Respiratory system: in the early month, the lungs are solid at the 28th week. Alveoli expand and are lined by the cuboidal epithelium. At 24 week, lung surface appears a lactinal sphygmomyelin ratio 2:1 in the liquor aminosuffusant full maturely. Breathing movement are identified by 11th week of irregular until 20 week. Their frequency varies from the 30 to 70 per minute. फिर आएगा fetal endocrinology. Growth hormone ACTH, prolactin, TSH and gonadotropic hormone are produced by the fetal pituitary as early as the 10th week. Vasopressor and oxytocic activity of the posterior pituitary has also been demonstrated as early 12 week. While the fetal ovaries remain inactive, the fetal testes medicate the developmental of the male reproductive structure. Fetal pancreas secretion insulin as early as the 12th week and glucagon by the 8th week. The fetal circulation. आज का अपना टॉपिक भी यही है. The umbilical vein carry the oxygenated blood from the placenta enter the fetus at umbilicus run along the free margin of the placentary ligament of the liver.
है ना। सबसे पहले अपन स्टार्ट करेंगे फिटल सर्कुलेशन की, एक एक स्टेप को समझेंगे कि फिटल सर्कुलेशन होता क्या है। सबसे पहले अपन देखेंगे कि ये क्या है आपका प्लेसेंटा, क्या है, क्या है प्लेसेंटा, है ना। ये क्या है आपका प्लेसेंटा है। क्या ये क्या है आपका अरे लीवर, ये क्या है आपका लीवर है ना। तो अब अपन ने क्या देखा, आपकी अम्लाइकल वेन निकल, कौन सी वेन निकल रही है, प्लेसेंटा से क्या निकल रही है, अम्लाइकल वेन। प्लेसेंटा से क्या निकल रही है, अम्लाइकल, क्या निकल रही है, अम्लाइकल वेन निकल, है ना। और आप ये देखोगे कि इसमें से कुछ ब्लड का जो पार्ट है वो किसको जाता है, लीवर को जाता है, ठीक है। किसमें जाएगा, लीवर में जाएगा। द लीवर इज used of branches of the left lobe liver and receive the deoxygenated blood from the portal vein. The greater portion of the oxygenated blood mixed with the some portion venous blood short circuit with the liver through the ductus venosus enter the inferior vena cava and there the right atrium of the heart. इसके बाद में क्या आएगा कि लीवर से फिर डक्टस वेनोसिस आएगा, है ना। यहां से क्या स्टार्ट होती है, डक्टस वेनोसिस, ये क्या है, क्या है डक्टस वेनोसिस, ठीक है। क्या आएगा, डक्टस वेनोसिस। और यहां से जो लीवर से ब्लड गया था वो भी क्या होगा इसके अंदर मिक्स हो जाएगा, है ना। यहाँ से जो लीवर के अंदर आपके अंदर ब्लड गया था वो भी क्या हो जाएगा इसके अंदर मिक्स हो जाएगा, ठीक है। अब आप ये देखोगे कि जो इंफीरियर वेना केवा है वहां पर जाके ब्लड मिक्स होता है, ठीक है। क्या होता है, इंफीरियर वेना, जो कहाँ से ब्लड लेता है, लोअर लिम्ब से, ठीक है। कहाँ से लेता है, लोअर लिम्ब से। अब आप ये देखोगे कि ये ब्लड यहाँ से कहाँ को जाएगा, राइट एट्रियम में जाएगा। कहाँ पे जाएगा, राइट एट्रियम में जाएगा। तो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे बनाते हैं, यहाँ से अपन हार्ट का स्टार्ट, सॉरी, ये है एएनएम, पीएनसी नर्सिंग क्लासेस कोर्स लेके आया है एएनएम का, जीएनएम का। एएनएम का ड्यूरेशन है 2 इयर्स का, जीएनएम का ड्यूरेशन जो है वो है 3 इयर्स का। एएनएम का आपका परचेज कोर्स कितना है 45,000 का, जीएनएम का कितना है 65,000 का। एज सुन एज पॉसिबल आप इस कोर्स को ले सकते हो, काफी अच्छा ऑफर चल रहा है ना। फिर उसके बाद में क्या आता है, कहाँ तक गया था ब्लड, सुपीरियर वेना केवा तक गया। सुपीरियर वेना केवा से ब्लड कहाँ जाएगा, राइट। अब वो इंफीरियर वेना केवा से वो वेन आ रही थी, है ना। ये क्या था, इंफीरियर वेना केवा, ये क्या है, हार्ट है, क्या है, हार्ट है। हार्ट के कितने चेम्बर हैं, 4, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, राइट सॉरी लेफ्ट, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल, है ना। तो यहाँ से एक तो इंफीरियर के नाम से ब्लड आ रहा है, एक कहाँ से आ रहा है यहाँ पर सुपीरियर वेना केवा, है ना।
दोनों जगह से ब्लड आ रहा है। फिर राइट एट्रियम में जो ब्लड होता है, यहाँ पर एक चीज प्रेजेंट होती है जिसको आप क्या बोलते हो, फोरामेन एवल। क्या बोलते हो, यहाँ पर कुछ प्रेजेंट होता है, उसको आप क्या बोलोगे, फोरामन ओवल। तो यहाँ से कुछ ब्लड तो कहाँ चला जाएगा, के अंदर कुछ ब्लड कहाँ चला जाएगा, लेफ्ट एट्रियम में। इसके अंदर जो कुछ ब्लड है राइट वेंट्रिकल से, यहाँ से क्या निकलती है, पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, ये यहाँ पर क्या है, लंग्स होते हैं। ठीक है, यहाँ से क्या निकल रही है, पल्मोनरी आर्टरी। ये पल्मोनरी आर्टरी किसके पास में जाएगी, लंग्स के पास में जाएगी। किसके पास में जाएगी, ये क्या है, लंग्स। ठीक है, किसके पास में गया, लंग्स के पास में गया। किसके पास में गया, लंग्स के पास में गया। उसके बाद में क्या होगा कि जो लेफ्ट एट्रियम है, लेफ्ट वेंट्रिकल है, उसके बाद में लंग्स से निकलती है क्या, पल्मोनरी वेन। क्या निकलती है, पल्मोनरी वेन। लंग्स से क्या निकलती है, पल्मोनरी वेन। ठीक है, ये सारा का सारा ब्लड नहीं देती है, कुछ ब्लड जो होता है वो किसके अंदर आ जाता है, अयोटा के अंदर। किसके अंदर आ जाता है, अयोटा के अंदर। ठीक है, कुछ ब्लड जो होता है वो उसको रहने देती है और उसको कहाँ लेके आ जाती है, अयोटा के अंदर। द्वारा किसके द्वारा, डक्टस विनोसिस के द्वारा, डक्टस विनोसिस के द्वारा। किसके द्वारा लेके आ रही है, डक्टस विनोसिस के द्वारा। के अंदर जाएगा, के अंदर से भी वो कहाँ पे आएगा, अयोटा के अंदर। अयोटा के बाद में आने के बाद में ये क्या करेगा, पूरी बॉडी जो होगी फीटस की, होल बॉडी में ब्लड सप्लाई करेगा। फिर वापस कहाँ जाएगा, ब्लड मिक्स हो जाएंगे, फिर कहाँ पे आएंगे वापस ये, और ऐसा ये, इसको अपन बोलते हैं कि फीटल सर्कुलेशन। ठीक है, इसके बाद में क्या था कि अपन ने ये पढ़ा था, यहाँ तक तो अपन ने पढ़ लिया था ना। इसके बाद में है the oxygen content of the mixed blood is those reached all through the ductus venosus and hepatic portal। किसमें चला जाएगा वो, इंफीरियर वेना केवा में जा रहा है। इंफीरियर वेना केवा से वो कहाँ आएगा, राइट हेप्टिक वेन से कहाँ आएगा, राइट एट्रियम में आएगा। राइट एट्रियम से फोरामन एवल से कुछ ब्लड तो कहाँ चला जाएगा, लेफ्ट एट्रियम में। बाकी का ब्लड जो रहेगा वो कहाँ चला जाएगा, राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल से क्या होगा कि वापस द लेफ्ट एट्रियल ब्लड इज पास थ्रू द मिट्रल ओपनिंग। लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ जाएगा, कुछ अमाउंट में रीच कहाँ जाएगा, राइट एट्रियम में जिसमें सुपीरियर वेना केवा होती है। उसके बाद में वो कहाँ जाएगा, थ्रू द ट्राइकस्पिड ओपनिंग, कहाँ जाएगा, राइट वेंट्रिकल में। ड्यूरिंग द वेंट्रिकल सिस्टोल द लेफ्ट वेंट्रिकल ब्लड इज पंप्ड असेंडिंग आर्च ऑफ अयोटा। सप्लाई कहाँ पर हो जाएगी, हार्ट, हेड, नेक, ब्रेन एंड आर्म्स के ऊपर। The right ventricular blood with low oxygen content is discharged into the pulmonary trunk. Since the resistance in the pulmonary arteries during fetal life is very high, the main portion of the blood passes directly through the ductus arteriosus is the descending, bypassing the lungs where is the mix with the blood from the proximal aorta। इसके बाद में आएगा 70% of cardiac output
right and 10% to left ventricle. It carries by the ductus arteriosus and descending aorta. About 40% of combined output goes to the placenta through the umbilical arteries. The deoxygenated blood leaves the body by way to two umbilical arteries and placenta, where it is oxygenated and gets ready for the recirculation. The umbilical cardiac output is comparatively high in fetus and estimated to be 350 ml per kg per minute. The hemodynamic of the fetal circulation undergo profound changes soon after the birth. मैंने यहाँ पे एक चीज और लिखनी है, ये सब फिर यहाँ पर जो आई तो आप क्या बोलते हैं, क्या बोलते हो, अम्लाइकल वेन। के बाद में अपन पढ़ेंगे कि द ऑक्सीजनेट कंटेंट, ये तो अपन ने पढ़ लिया। के बाद में अपन कुछ चीजें देखेंगे कि इसके अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं, है ना, वो चेंजेस देखेंगे अपन। फीटल सर्कुलेशन और अडल्ट सर्कुलेशन में क्या डिफरेंस। सबसे पहले अपन ये देखेंगे कि फीटल सर्कुलेशन, दो चीजें पढ़ेंगे अपन, एक तो पढ़ेंगे फीटल सर्कुलेशन, एक पढ़ेंगे अडल्ट अडल्ट फीटल सर्कुलेशन जो होता है, इसके अंदर क्या होता है कि आपका इसका जो ब्लड होता है वो कैंसर टाइप का चलता है, मिक्स टाइप का चलता है। देखिए अडल्ट सर्कुलेशन में क्या होता है कि जो लंग्स होते हैं वो कैसे हो जाते हैं, मेच्योर हो जाते हैं। लंग्स कैसे हो जाते हैं, मेच्योर हो जाते हैं, है ना। तो सबसे पहले साइट ऑफ ऑक्सीजनेटेड प्लेसेंटा होती है, इसकी साइट ऑफ ऑक्सीजन है वो लंग्स होती है। कि जो साइट ऑफ ऑक्सीजनेशन वो क्या होती है, प्लेसेंटा, ठीक है। इसकी जो साइट ऑफ ऑक्सीजनेशन वो क्या होती है, एक लंग्स, है ना। इसके बाद में आएगा कि इसके अंदर आप क्या देखोगे कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज कैरीड फ्रॉम प्लेसेंटा टू फीटस थ्रू अम्बिलिकल वेन, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरीड थ्रू आर्टरीज। इसमें जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो कैरी होता है कहाँ से, अम्बिलिकल, अम्बिलिकल आर्टरी है, अम्बिलिकल वेन है, अम्बिलिकल वेन से। और इसके अंदर जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी होता है वो कहाँ से होता है, आर्टरी, ठीक है। इसके बाद में अपन देखेंगे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरीड होता है कहाँ से, अम्बिलिकल आर्टरीज के अंदर जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो कैरी होता है कहाँ से, अम्बिलिकल आर्टरीज से। इसके अंदर जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी होता है वो कहाँ से होता है, वेन से। कहाँ से होता है, वेन से। इसके बाद में आएगा इसके अंदर 3 शंट पाए जाते हैं, इसके अंदर 9 शंट पाए जाते हैं, है ना। इसके अंदर जो शंट है ना फीटस के अंदर,
कि शंट्स प्रेजेंट होते हैं। इसके अंदर क्या होता है, नो, इसके अंदर कौन कौन से शंट्स होते हैं, एक होता है डक्टस आर्टरियोसिस, एक होता है डक्टस डक्टस विनोसिस, और क्या होता है फोरामेन एवल। डक्टस विनोसिस और एक होता है फोरामेन ओवल। इसके अंदर कोई शंट नहीं पाया जाता है, लेकिन इसके अंदर कनेक्ट होती है अम्बिलिकल वेन टू इंफीरियर वेना के बाद कनेक्ट होता है राइट एट्रियम टू लेफ्ट एट्रियम, कनेक्ट होता है पल्मोनरी आर्टरी टू आयोटा। इसके अंदर क्या होता है, कनेक्ट होती है, कनेक्ट होता है क्या, सबसे पहले अम्बिलिकल वेन टू इंफीरियर वेना केवा, अम्बिलिकल वेन टू इंफीरियर वेना केवा, एक होता है कनेक्ट राइट एट्रियम टू लेफ्ट एट्रियम, कनेक्ट राइट एट्रियम टू, कनेक्ट होगा राइट एट्रियम टू लेफ्ट एट्रियम, और कनेक्ट होता है क्या, लास्ट कनेक्ट क्या होगा पल्मोनरी आर्टरी टू अयोटा, पल्मोनरी आर्टरी टू अयोटा। ये डिफरेंस है फिटल सर्कुलेशन में और अडल्ट सर्कुलेशन में। उसके बाद में आता है कि द hemodynamics of the fetal circulation undergoes profound changes soon after the birth, cesarean of the placental blood flow and inhibition of the respiration। सबसे पहले क्या क्या सिम्टम्स होते हैं इसके अंदर, क्लोजर ऑफ द अम्बिलिकल आर्टरी क्लोज हो जाती है, फंक्शनल क्लोजर इज ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियस प्रिवेंटिंग इवन स्लाइट अमाउंट ऑफ द fetal blood flow to drain out, और फिर क्या आएगा ऑब्सलेशन टेक्स अबाउट 2 to 3 months, the distal parts from the lateral umbilical ligaments and the proximal parts remain open as superior vesicles arteries, closure of the umbilical vein, the obliteration occur little later than arteries, allowing free extra volume of blood be received by the fetus from the placenta, the ductus venosus collapse and the venous pressure of the inferior vena cava falls, and so also the right atrial pressure. After obliteration, the umbilical vein forms the ligamentation trees and ductus venosus become the ligamentation venosum, है ना, आफ्टर द क्लोजर ऑफ 7 days। पीएनसी क्लासेस आपके लिए ला रहा है ऑनलाइन बेच एएनएम का जो मात्र है 215 रुपीज, जीएनएम का जो है वो मात्र है 267 रुपीज। जल्द से जल्द ये कोर्स परचेज कीजिए और इसका लाभ उठाइए। इसके बाद में आता है क्लोजर ऑफ द डक्टस आर्टरियोसिस, विद इन फ्यू हावर्स ऑफ रेस्पिरेशन द मसल्स वॉल ऑफ द डक्टस आर्टरियोसिस कंटेन प्रोबेबिलिटी रिस्पॉन्स राइज इन ऑक्सीजन टेंशन, फिर वो किसके अंदर कम हो जाता है, फंक्शनल क्लोजर हो जाता है, डक्टस में भी अकर, कब सर्कुलेशन एनाटॉमिकली ऑपरेशन टेक्स अबाउट 1 to 3 months, है ना, फिर किसमें कन्वर्ट हो जाता है लिगामेंटेशन आर्टरियोडिज्म में। इसके बाद में आता है कि द क्लोजर ऑफ द फोरामेन ओवल, दिस इज कॉज्ड बाय इंक्रीज प्रेशर ऑफ द left atrium combined with a decreased pressure on the right atrium. Functional closure occurs soon after birth, but anatomically closure 1 year में during the first few days the closure may be reversible. This is evidence clinically by the cyanotic look of the baby during the crying। फिर आएगा is shunting of the blood from right to left, क्या आएगा right to left। के बाद में आएगा within 1 to 2 hours following the birth, the cardiac output is estimated to 500 ml minute per heart rate varies from 120 per rate minute। ठीक है, क्या होता है
चेंज आते हैं कुछ टाइम के चेंजेस ऑफ एट द टाइम ऑफ बर्थ। फीटल सर्कुलेशन में क्या क्या चेंजेस आते हैं? चेंजेस आफ्टर द बर्थ, है ना? चेंजेस एट टाइम ऑफ बर्थ, सॉरी, चेंजेस एट टाइम ऑफ बर्थ। सबसे पहले क्या होता है कि जो लंग्स हो जाते हैं स्टार्ट फंक्शनिंग, प्लेसेंटा स्टॉप फंक्शनिंग। लंग्स क्या करता है? स्टार्ट करता है फंक्शनिंग और प्लेसेंटा क्लोज फंक्शनिंग। के बाद में क्या होता है कि लंग बिकम साइट ऑफ ऑक्सीजनेशन। लंग्स जो होते हैं बिकम साइट बन जाते हैं किसकी? ऑक्सीजनेशन। उसके बाद में क्या होता है कि स्ट्रक्चर क्लोज हो जाती है। कौन कौन सी स्ट्रक्चर क्लोज हो जाती है? स्ट्रक्चर क्लोज, है ना? कौन कौन सी होती है? अम्लाइकल। कौन कौन सी स्ट्रक्चर क्लोज होगी? अम्लाइकल आर्टरी, अम्लाइकल वेन, अम्लाइकल आर्टरी, अम्लाइकल वेन, डक्टस विनोसिस, डक्टस आर्टरियोसिस, और एक और क्या आएगा? फोरामेन ओवेन। ये सब क्या हो जाते हैं? क्लोज हो जाते हैं। अब अपन ये देखेंगे कि ये चारों जो है वो क्लोज होके क्या बन रहे हैं, है ना? वो आपका थोड़ा टफ लैंग्वेज में लिखा था, अपन थोड़ा इजी लैंग्वेज में लिख देते हैं कि ये जो होंगे ये बाद में फीटल स्ट्रक्चर के बाद में अडल्ट स्ट्रक्चर में कैसे कन्वर्ट होते हैं, है ना? तो सबसे पहले क्या आएगा कि जो डक्टस आर्टरियोसिस है वो किस में कन्वर्ट होगा? लिगामेंटम आर्टरियोजम में, ठीक है? फिर है डक्टस विनोसिस, वो किस में कन्वर्ट होगा? लिगामेंटम विनोजम में। की बात में आता है फोरामेन ओवेल, वो किस में कन्वर्ट होगा? फोजा ओवेल्स में। के बाद में आता है अम्बलाइकल वेन, वो किस में कन्वर्ट होगी? लिगामेंटम वेन्स में। के बाद में आएगा अम्बलाइकल आर्टरी, वो किस में कन्वर्ट होगी? मीडियल अम्बलाइकल लिगामेंट में, ठीक है? ये स्ट्रक्चर कब थी? फीटल स्ट्रक्चर थी जो अब किस में कन्वर्ट हो गई? अडल्ट ये था आपका फीटल सर्कुलेशन। थैंक यू सो मच।